Hello everyone, welcome to UPSC Digital Library. Welcome to the complete course on Medieval Indian History. Medieval Indian History के complete course में आप सभी का स्वागत है. Today we are going to discuss chapter number 4, भक्ति मूवमेंट. आज इस चौथे चैप्टर में हम लोग भक्ति मूवमेंट को डिस्कस करेंगे. This is about me. I am Abhijit Singh Arora. Now, before we proceed further, it is very important for us to understand that when we are discussing bhakti movement in this chapter, then what is the need to study Sufism? जब इस चैप्टर में हम लोगों को भक्ति मूवमेंट की बात करनी है तो फिर ये सूफिज्म का टॉपिक इस वीडियो में क्यों आया है? It is because it is through the direct impact of this Sufism that the later saints who were bhakts, they were influenced by Sufism. जी हाँ, जो ये सूफिज्म है, इसी सूफिज्म का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो भी भक्त थे, जो भी संत महात्मा थे, उन पर पड़ा था. इनकी जो सूफिज्म की जो भी टीचिंग्स थी, उनका असर. तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि सूफिज्म क्या है. That is why, first of all, we will have to understand what this Sufism is all about, and after that, we'll talk about Bhakti movement, and then last but not the least, we will also try to look at what was the significance or importance of this Bhakti movement. Hope this makes sense to all of you. All right. So, it is not that we are talking about this Bhakti movement for the first time. For those of you who have finished the ancient history, Indian history video series, must have read about Pallavas, Pandyas, Cholas. Under that also, we had already talked about Nayambars, Vaishnavites. Nayambars were those who used to worship Lord Shiva. Vaishnavites were these Alvars Vaishnavites were those who used to worship Lord Vishnu. तो ये बातें हम लोग जो शैवाइट्स जो भक्त थे, वैष्णवाइट्स थे, ये हम लोगों ने जब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में पल्लवास, पांड्यास और चोलास की बात की थी, उस समय हम लोग ये बात पहले ही कर चुके हैं. बट इन दिस वीडियो आवर फोकस इज ऑन दी भक्ति मूवमेंट दैट हैपेंड इन दी मेडिवल इंडिया. ये जो भक्ति मूवमेंट मेडिवल इंडिया में हुआ था, दिस हैड अ डायरेक्ट इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया. So this in this bhakti movement which we are reading right now in the medieval India, this was the direct impact or it had a direct significance from the spread of Islam in India. जो इस्लाम धर्म हमारे देश में जो medieval इतिहास या मध्यकालीन इतिहास के दौरान जो बढ़ रहा था, उसी का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट था. So what were the salient features of this Sufism? So the basic thing, first of all, you guys must know about Islam की जो इस्लाम रिलीजन के कुछ distinctive characteristics क्या क्या होते हैं. The first thing, the very important thing is monotheism. What is the meaning of monotheism? Mono means one and theism means belief. So a religion which believes in only one God is known as monotheism. So in this religion, they used to believe in equality. There used to be no caste distinctions. They used to believe in one God, and they used to reject rituals and this class division, which I just now told you. All right. And later on in this chapter, when we'll see that many Bhakti reformers such as Ramananda, Kabir, which all of you must have heard about, Kabir ke Dohe, which are very famous, Guru Nanak, all of them were directly or indirectly influenced by the thinking or the preaching pattern of these Sufi teachers. तो कहीं ना कहीं ये जो सूफी गुरु थे, जो ये सूफिज्म के जो ये गुरु थे, उन्हीं की सोच या उन्हीं की शिक्षा से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर कई भक्ति के रिफॉर्मर्स जैसे रामानंदा, कबीर, गुरु नानक, ये भी
उसी तरह की बातें करते थे भक्ति मूवमेंट में। आई होप दिस मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट सूफिज्म। सो सूफिज्म क्या है? जैसे in any religion, when we talk about the inner reforms, if you guys remember during ancient history, when the caste system was prevalent, new reforms were coming, new religions were emerging out, such as Jainism and Buddhism. In the same manner, now to bring about the internal reforms within this Islam religion, Sufism was formed. It is said that this Sufism had its origin in Persia. इसका origin पर्शिया में था. Later on, it spread into India in the 11th century. बाद में 11th century में भारत में आता है. And first Sufi saint शेख इस्माइल ने लाहौर से अपनी शिक्षा देना शुरू किया था. So Sheikh Ismail, he started preaching his ideas from Lahore. And again, now this is mostly facts, so you guys can read it 2 to 3 times, but still let me tell you some of the prominent facts. अब यहाँ पर कई सारे facts दिए हुए हैं, फिर भी इसमें से जो important चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. In India also, there were many famous Sufi saints such as ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर में सेटल हो गए थे, who settled down in Ajmer, and from there he used to do his activities of preaching. Now, whosoever used to be the disciples या इनके जो भी आने वाले समय में जो भी भक्त बनते थे, they were called as Sufis of the Chishti order, इन्हीं के नाम पर. In the same way, there were other great Sufi saints also, such as Bahuddin Zakaria, who also came under the influence of another famous mystic, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी. अब ये जो सुहरावर्दी थे, इनके जो जो भी डिसाइपल्स बनते जाएंगे, जो भी इनके आने वाले समय में जो भी इनके स्टूडेंट्स कह सकते हैं आप, या भक्त बनेंगे, नाउ दोज वेयर नॉन एज सूफीज ऑफ द सुहावर्दी ऑर्डर. तो इनके जो सूफी सेंट्स की जो ब्रांच बनी वो इस नाम से जानी जाती थी. फिर निजामुद्दीन औलिया जो थे वो भी चिश्ती ऑर्डर की थी, मतलब उनके नीचे के ही एक डिसाइपल थे. और ये जो सूफी गुरु थे, ये जो सूफी सेंट्स थे, दी सूफी सेंट्स, दे वेर रिमेंबर्ड एंड रिस्पेक्टेड नॉट जस्ट बाय मुस्लिम्स बट also by Hindus, and wherever they used to die and their tombs were made, जहां पर भी उनको दबाया गया था, such places became popular for both the communities. हिंदू मुस्लिम सब वहां जाते थे उनकी कब्र पर अपने जो भी अपनी मिन्नतें लेकर या प्रार्थनाएं लेकर with their prayers. So that is something I told you about some Sufi saints, but still what are the principles of this Sufism? ये Sufism के अंदर में आखिर है क्या? Now, basic difference, first of all, what you need to understand is, earlier times when this Islam religion was formed, after that, so this gap between when this Islam was formed till this Sufism, so they used to emphasize a lot on the external conduct, कि हमें पहनना क्या है, हमारा बोलचाल कैसी होनी चाहिए. So on the external conducts, things were given a lot of emphasis. But the Sufi saints, they laid stress on the inner purity. वो कहते थे कि मन में हम साफ होने चाहिए, मन में, हमारे मन में प्यार होना चाहिए, हमारे मन में भगवान के लिए डिवोशन होना चाहिए, अल्लाह के लिए डिवोशन होना चाहिए, सच्चे दिल से दुआ निकलनी चाहिए लोगों के लिए. So that is what Sufism used to stress about. It used to emphasize on the elements of love. The devotion is the ultimate means towards so that your prayers could reach Allah. Hope this makes sense to all of you. Now, it also said कि ये जो प्यार की बात हो रही है, ये जो love की बात हो रही है, this love of God, this actually means love of humanity. यानी कि आप जितने लोगों की सेवा करेंगे, जितना लोगों के काम आएंगे, उतना ही आप भगवान के, ईश्वर के करीब पहुंचते जाएंगे. And at the same time, they also believed that self-discipline was very, very important when we have to gain knowledge of God.
जब हमको अपना परसेप्शन या सोच का नजरिया बदलना है और हमको भगवान के करीब पहुंचना है या सच्चाई को जानना है, ट्रुथ को समझना है, रियलिटी को समझना है, in that case self discipline is very very important. Another important thing was कि they used to say that believing in rituals, blind observance of rituals, से किसी भी तरह से अंधभक्ति करना या ऐसे नियम कानूनों का पालन करना, रिचुअल्स का पालन करना, दैट इज नॉट राइट. वो सिर्फ अगर आपका मन साफ है, आप ह्यूमैनिटी की सर्विस करते हैं, दैट आर दी ओनली मीन्स ऑफ अटेनिंग साल्वेशन. यही, इसी से आप लोगों को मुक्ति मिल सकती है. इसी की वो बात करते हैं सूफिज्म में. इसके अलावा वन मोर थिंग व्हाट इज मेंशन ओवर देयर वाज दैट विदाउट द गाइडेंस ऑफ अ पीर और गुरु, बिना गुरु के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है. सो दैट इज व्हाई इन सूफिज्म दे ऑलवेज एम्फसाइज्ड अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ a peer, which means guru. At the same time, one very important thing in Sufism that also happened was to inculcate a spirit of tolerance among its followers. इसका मतलब कि अगर आपका जो भी धर्म है, आपको दूसरे धर्मों का सम्मान करना है, आपको सही रास्ते पर चलना है, दूसरे धर्मों के जो भी रीति रिवाज हों वो उनकी मर्जी, अगर वो समझ जाए तो ठीक, नहीं तो उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी. एक लिबरल थॉट प्रोसेस यहां पर इस सूफिज्म में हमें देखने के लिए मिली. इसके अलावा कुछ और आइडियाज भी थे जो ये सूफिज्म ने एम्फसाइज किया जिन चीजों पर, सच एज मेडिटेशन, द एक्शंस शुड बी गुड, वी शुड ऑलवेज आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर द सिंस, वी शुड परफॉर्म प्रेयर्स, वी शुड गो फॉर पिलग्रिमेजेस like Makkah, Medina, we should do fasting, we should do charity work, and we should be less passionate about this like human word कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हो, गाड़ियाँ हों, ज़मीनें हों. So they used to say that this materialistic word has less significance while achieving this spiritual development. Hope this makes sense to all of you. All right. तो कहीं ना कहीं ये जो लिबरल फीचर्स थे या अनऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स तो नहीं थे, ऑब्वियसली दीज वेर मॉडर्न फीचर्स ऑफ सूफिज्म, सो दे हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन दी मेडिवल भक्ति सेंट्स. एंड लेटर ऑन अकबर, जो एक मुगल बादशाह भी, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे व्हेन विल स्टडी दी मुगल एम्पायर, विल टॉक अबाउट अकबर. सो इवन अकबर ऑल्सो यूज्ड टू एप्रिशिएट दिस सूफी डॉक्ट्रिन्स अ लॉट, and his religious policies were directly or indirectly influenced a lot by this Sufism. तो अकबर की भी जो धर्म से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हुआ करती थी वो भी सूफिज्म से बहुत ज्यादा इंपैक्टेड होती थी. अब जब ये सूफी मूवमेंट या सूफिज्म बहुत ज्यादा हमारे देश में पॉपुलर हो गया, उसी समय हिंदुओं में भी ये भक्ति कल्ट या भक्ति मूवमेंट फैलना शुरू हो गया उसी से प्रभावित होकर. सो दीज टू पैरेलल मूवमेंट्स वेर ट्राइंग अ लॉट. ये सूफिज्म, भक्ति मूवमेंट, ये दोनों अपनी अपनी जगह से पूरी कोशिश कर रहे थे. फ्रॉम बोथ साइड्स दे वेर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग बोथ द कम्युनिटीज टुगेदर. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द भक्ति मूवमेंट. ऑलराइट, सो in the 9th century, Shankaracharya, he started a revival movement in the Hinduism. हिंदुइज्म में शंकराचार्य जो केरला से थे, उन्होंने एक नए तरीके की डॉक्ट्रिन बनाई, लोगों को एक नए तरीके की जानकारी देना शुरू की हिंदुइज्म से संबंधित. हिज डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत was abstract. अब ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है his concept were of निर्गुण ब्रह्मांड. अब ये दो चीजें आप यहां पर आपको समझनी पड़ेंगी. वन इज निर्गुण ब्रह्मांड एंड वन इज सगुण ब्रह्मांड. So what is the difference between these two things? So let me take an example. Let's say there are two people. Both of them believe in God. The individual number A, this first person, he believes that God is just an energy.
ऑलराइट, द फर्स्ट पर्सन फील्स कि ये जो भगवान है, ये ईश्वर, ये सिर्फ एक शक्ति है. इट डज नॉट हैव एनी शेप, इट डज नॉट हैव एनी फॉर्म. भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है. भगवान सिर्फ एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है. सो इट इज टॉकिंग अबाउट द मोर ऑफ दिस स्पिरिचुअलिटी. दूसरी तरफ दिस इंडिविजुअल बी, ये मूर्ति पूजा भी करते हैं. और जब ये गुरु को मानते हैं तो गुरु को चाहे वो अपनी माँ के रूप में गुरु माने, चाहे अपने पिता के रूप में माने, वेदर दिस इंडिविजुअल फाइंड्स अ गुरु इन अ स्कूल टीचर, ही सेज दैट नो, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड नीड्स टू हैव अ फॉर्म. यानी कि अगर भगवान की भी बात करें तो उसका कोई आकार होना चाहिए, वो किसी न किसी तरीके से दिखना चाहिए. सो दिस पर्सन ए, दिस पर्सन हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ निर्गुण ब्रह्मांड, जिसका कोई आकार नहीं हो. वेयर एज सगुण ब्रह्मांड मतलब जिसका कोई आकार है, जिसका कोई रूप है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. तो ये जो शंकरा थे, ये निर्गुणा ब्रह्मांड इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे. लेकिन इस भक्ति मूवमेंट में द बेसिक थिंग इन दिस भक्ति मूवमेंट इज दैट most of these bhakti philosophers, most of them I'm saying, were having the idea of सगुण ब्रह्मांड. मतलब आप चाहे विष्णु की पूजा करें या शिव की पूजा करें, तो उसमें आपके सामने अगर उनकी मूर्ति है, आप नाचते गाते हैं. सो दीज आइडल्स, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू टू फोकस, दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू टू कनेक्ट. तो आप जिस एनर्जी की भी बात कर रहे हैं, उस एनर्जी को भी आप लोग चैनलाइज कर पाएंगे. And if you talk from my perspective, so both of them have their own significance obviously. दोनों, both of them have reality as per the religious definition. But जो एक बिगिनर इंसान है, आप अगर सपोज कीजिए, इफ यू डू नॉट हैव आईज सिंस यू आर बोर्न, अगर आपकी आंखें ही नहीं है, जब से आप पैदा हुए हैं आपकी आंखें ही नहीं है, तो आपने दुनिया में कुछ भी देखा ही नहीं. तो आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, उसको विजुअलाइज करना मुश्किल होगा. तो मेरा यह मानना है कि शायद कहीं ना कहीं जो भी ऋषि मुनि थे, वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि पहले लोग सगुण ब्राह्मण को समझें, एक लोग भगवान को एट्रीब्यूट्स के साथ देखें, और फिर जब एक लेवल पर पहुंच जाए, है ना, हम लोग डायरेक्टली क्लास 10th की मैथ्स नहीं सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वी सॉल्व क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेवल बाय लेवल वी हैव क्रॉस दी स्टेजेस. तो जब हम ये लेवल क्रॉस कर ले, तब हम निर्गुण ब्रह्मांड की ओर पहुंचे. तब हम लोग आइडल्स को छोड़कर इस दुनिया के मटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर उठकर, तब हम लोग डायरेक्टली मेडिटेशन के थ्रू भगवान को फील कर सकते हैं. सो लेट्स प्रोसीड नाउ. Later on in the 12th century, when Ramanujam was born near Chennai, according to him, God was Sagun Brahman. That means God has a form. But what he believed was that God is basically the inner substance. The main thing is God. And everything else what you see in this world, दुनिया में बाकी सब कुछ आपको जो भी दिखता है, वो सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं. तो सब कुछ भगवान का एक रूप है, और उन्हीं सारे रूपों में से ये बाकी सारी चीजें बनी हुई हैं. And at the same time, he said that no, all the objects whatever you see, all of them are real, they are not illusory. जैसे कि शंकराचार्य ने कहा था कि ये सब मोह माया है, ये सब रियलिटी नहीं है, ये सब. सो ही यूज्ड टू से नो, गॉड, सोल, मैटर, एवरीथिंग इज रियल. एंड Ramanuja, he also advocated Prabhatti Marg. What is the meaning of Prabhatti Marg? That means everybody should self surrender themselves to God. खुद ही भगवान के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए. All right. So these were the basic things about him. Now, then in the 13th century, then Madhva, जो कन्नड़ा रीजन से थे, कर्नाटका रीजन से, उन्होंने जीवात्मा परमात्मा के बारे में अपनी फिलॉसफी दी, जिसमें उन्होंने बताया दैट अगेन दिस वर्ड इज नॉट एन इल्यूजन, इट्स अ रियलिटी. गॉड, सोल, मैटर ऑल आर यूनिक. उसी समय तेलंगाना में भी निम्बरका और वल्लभाचार्य, ये भी और नए प्रीचर्स आए जो लॉर्ड विष्णु की भक्ति के लिए काफी फेमस हुए. सूरदास, जो वल्लभाचार्य के ही एक डिसाइपल या उनके शिष्य थे, उन्होंने इस कृष्णा भक्ति को नॉर्थ इंडिया में काफी पॉपुलर किया.
मीराबाई का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मीराबाई. She was a great devotee of Lord Krishna and she was very famous for her bhajans in Rajasthan. And Tulsidas, I think all of you must have heard about Tulsidas. He wrote the famous Ramcharitramanas in Hindi, so which was the Hindi version of this Ramayana. He was a worshipper of Lord Rama. All right. And then now let's talk about Ramananda. Ramananda, he was born in Allahabad and he was basically a follower of Ramanuja. बाद में इन्होंने बनारस आगरा से अपनी प्रीचिंग्स देना शुरू कर दी और इन्होंने काफी सिंपलिस्टिक वे में, काफी इन सिंपलर लैंग्वेज ही यूज टू टेल टू द पीपल हाउ टू वर्शिप. एट द सेम टाइम ही टेल टू द पीपल दैट ये जो भी कास्ट सिस्टम्स के रूल्स हैं दे हैव वेरी लेस सिग्निफिकेंस. कास्ट सिस्टम ये सब कुछ नहीं है. ही यूज टू ओपोज दिस कास्ट सिस्टम एंड all his disciples, जो भी इनके भक्त थे, शिष्य थे, they used to come from all sections of the society. For example, Kabir. By the way, Kabir was born to a Brahmin family, but born and brought up with Muslim couple. All right. Rai Das was a cobbler. See, barber. All right. Bachelor, जो मांस मुर्गा वगैरह काटते हैं, साधना. Dhanna, who was a Jat farmer. So you will see even Prince. So you will see his disciples used to come from almost all sections of the society. All right. Now the most famous disciple of Ramananda was Kabir. I think all of you must have heard about Kabir. मैंने बताया था कि वो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे, to a Brahmin widow, and he was later on born and brought up by a Muslim couple who were weavers. So जो सिलाई बुनाई वगैरह का काम करते थे. एंड ही हैड अ लॉट ऑफ इंक्वायरिंग एटीट्यूड. इनके अंदर बहुत सारी चीजें थी मन में कि ऐसा क्यों होता है, जानने की इच्छा थी. एंड दैट इज व्हाई ही लर्नड अ लॉट अबाउट बोथ हिंदू रिलीजन एज वेल एज इस्लाम रिलीजन. एंड रामानंदा जो इनके गुरु थे, ही ऑल्सो इनिशिएटेड हिम कि नहीं तुम और सीखो और जानो. लेटर ऑन कबीर ही डिनाउंस्ड आइडोलेट्री. इन्होंने मूर्ति पूजा का और रिचुअल्स का को मानने से मना कर दिया और लोगों को भी यही समझाया. इन्होंने बताया कि भगवान की नज़र में हम सब बराबर हैं. और इन्होंने तो ये भी बताया कि जैसे जिस मिट्टी से घड़ा बनता है, सो लेट्स से दिस इज एन अर्दन पॉट, सो फ्रॉम वट एवर क्ले और सॉइल दिस इज मेड अप ऑफ, in the same way we human beings, be it Hindus or Muslims, we all are made up of from the same essential one thing. So whether it is Ram, whether it is Allah, whether it is temple, whether it's a mosque, everything is same. So as you guys can see over here कि अपने level पर from his side Kabir is trying his level best to bring this religious unity also. And he also told that everybody must have a pure heart, we must not be cruel, we must not be dishonest, and there should be no hypocrisy, we should not be insincere, we should be utmost sincere. और इनके जो भी भक्त होते थे, जो भी इनके नीचे साधु संत होते थे, इनके फॉलोअर्स होते थे, दे वेर नोन एज कबीर पंथीस. ऑल राइट. अनदर इंपॉर्टेंट सेंट प्रीचर, एक और जो गुरु इस मेडिवल पीरियड के थे, ही वॉज गुरु नानक. सो ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन. ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ कबीर. ये भी कबीर के ही एक शिष्य थे. ही वॉज बोर्न इन तलवंडी विच इज वॉज इन लाहौर. ऑल राइट. इन्होंने भी रिचुअल्स जैसे नदी में नहाना, जनेऊ पहनना और मुंडन करवाना, इन सब रिचुअल्स वगैरह कई चीज़ों का खंडन किया. एंड ही टोल्ड कि आपको भगवान के करीब पहुंचने के लिए आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान के करीब पहुंच सकते हो. यूज्ड टू से दैट यू नीड नॉट बिकम अ सेंट टू रीच नियर टू गॉड. इवन इन अ family life also, with your dedication and devotion you guys can reach to God. And he used to say कि चाहे जितनी भी दुनिया में इम्प्योरिटीज हो, उन सारी इम्प्योरिटीज में भी हमको सबसे प्योर, सबसे ईमानदार बनने की कोशिश करनी चाहिए. हमको सेल्फिशनेस छोड़ देनी चाहिए, झूठ फरेब छोड़ देनी चाहिए, ईमानदारी और दया के साथ जीवन हमें जीना चाहिए. और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी हिंदूज और मुस्लिम्स में एकता लाने के लिए. अब गुरु नानक के जो भक्त से या फॉलोअर्स थे, दे वर नोन एज सिख्स. आज भी इनको हम सिख कम्युनिटी से जानते हैं. अनदर ग्रेट
सेंट फ्रॉम बंगाल, ये बंगाल के थे, ये कृष्ण भक्ति के लिए काफी फेमस थे. ही वॉज वेरी फेमस फॉर वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा, वॉज चैतन्य. So he became a saint. He left this world full of a materialistic world. और ये पूरी दुनिया घूमते थे. He used to wander around the country preaching his ideas that everybody is equal. There is no difference between religions and caste. We should show sympathy towards other people, especially towards the poor people and the weak people. गरीबों के लिए हमें दया दिखानी चाहिए, सिंपैथी दिखानी चाहिए. लव के थ्रू, डिवोशन के थ्रू, नाच गाने के थ्रू एक भक्त जो है भगवान की प्रेजेंस को फील कर सकता है. आज भी इनकी टीचिंग्स काफी फेमस हैं बंगाल में, चैतन्य जी की. ऑल राइट. हाँ, नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट महाराष्ट्र, तो यहाँ पर ज्ञानदेव जो थे वो काफी फेमस थे 13th सेंचुरी के आसपास. और इन्होंने एक कमेंट्री भी लिखी थी भगवत गीता के ऊपर, जिसको ज्ञानेश्वरी कहते हैं. ज्ञानदेव के अलावा नामदेव भी थे, जिन्होंने प्यार और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट काफी कुछ किया था कि प्यार से जीना चाहिए, वी शुड नॉट बी क्रूएल, वी शुड बी, दिस कास्ट सिस्टम इज अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन टू दी सोसाइटी. आइडल वर्शिप को अपोज करते थे. और ये जो प्रीस्ट थे उस समय, जो ब्राह्मण्स थे, उन्हीं का डोमिनेशन था कि जो भी पूजा पाठ होंगे ब्राह्मण्स करेंगे. यूज्ड टू अपोज दैट डोमिनेशन कि नहीं, एवरीबडी हैज द राइट. तो ही यूज्ड टू बिलीव इन दी इक्वालिटी. फिर इसी तरह से आपको कुछ और भी यहाँ पर नाम दिखेंगे, जैसे 16th सेंचुरी में एकनाथ आए. इन्होंने भी कई भजन और कीर्तन वगैरह लिखे थे. फिर महाराष्ट्र में एक तुकाराम भी थे, जो शिवाजी महाराज के समय, उन्हीं के समय में मौजूद थे. और उस समय जो मराठा में जो एक राष्ट्रवाद था, उसको पैदा करने में भी इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी. नाउ, ये जो कुछ भी हमने बात की अभी भक्ति मूवमेंट की, वट एवर वी टॉक्ड जस्ट नाउ अबाउट दिस भक्ति मूवमेंट, दिस सूफिज्म, what role did it play? What was the importance of it? So the most important thing that we need to understand is that these bhakti movement, this happened in various regional languages such as Hindi, Marathi, Bengali, Kannada, and that is why it was not in a single language, Sanskrit. So that is why we were able to reach maximum people. ये जो भक्ति मूवमेंट था, ये ज्यादातर देश में फैला, क्योंकि वर्नाकुलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेजेस में डायरेक्ट लोगों को ये अट्रैक्ट बहुत किया. फिर ये जो भक्ति सेंट्स थे, दे यूज्ड टू कंडेम दिस कास्ट सिस्टम. सो दैट इज व्हाई द लोअर कास्ट पीपल वेर रेज्ड एंड वेर गिवन अ ड्यू इम्पोर्टेंस. महिलाओं की इंपॉर्टेंस सोसाइटी में इंप्रूव हुई, उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हुई. और भक्ति मूवमेंट ने लोगों को सिखा दिया कि आप एक सिंपल तरीके से रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं विदाउट दीज कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स. So this bhakti movement showed to the people that you can follow simple religion without complicated religion rituals, and between you and between God, you need not to worry about these rituals. If you are a true devotee, through your bhakti you can reach out to God. And they also showed to people that we should live a life of charity, we should service each other, we should help each other whosoever is in need. So I hope this video was helpful to all of you. Thank you everybody for watching. God bless you.